Hello and welcome to Diplomacy of UPSC with a future diplomat. Today we are going to start a new series on the Current Affairs magazine. हम Current Affairs magazine के new series को आज start करने जा रहे हैं. And which magazine we are following? We are following the monthly Current Affairs Vajiram and Ravi's magazine that comes with the name of Recitals. हम Recital magazine को follow करने वाले हैं and will go subject wise. That for one particular subject there will be one video, and we are starting with the international relations subject. So before proceeding further, there are a few things that needs to be discussed beforehand. Once again, welcome to the channel. So the question arises, why we are proceeding with the Recital monthly magazine and not the Vision? Because if you see, majority of the aspirants follows Vision monthly magazine. Okay, but why are we not following? देखिए, मुझे जो ऐसा लगा that the orientation and presentation of Recital magazine is much better in comparison to the Vision magazine. This is what I felt. You can felt the otherwise, but this is what I felt. The second is the language. The third is the language. If you read the monthly magazine of Recitals by yourself, you can see that the English that they are using, it is much more familiar in comparison to Vision. और हमें magazine जो है, magazine is just a book of current affairs. It is just a book of current affairs. तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसको read नहीं करना है, we have to learn, जिससे कि हम प्री में MCQs को सॉल्व कर पाएँ और मेंस में इसके डेटा को कोड कर पाएँ. पर अगर ये हमें लर्न ही नहीं होगा तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए विजन द मंथली मैगजीन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, ओरिएंटेशन भी बेटर लगा. द फोर्थ वन इज द कंप्रीहेंसिव कंटेंट. ऑल्दो विजन द मैगजीन काफ़ी कंप्रीहेंसिव है ऑन इट्स ओन, बट मुझे इस वाजीराम का कंटेंट काफ़ी बेटर लगा. द रीज़न इज़ ये काफ़ी एलैबोरेटेड वे में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है. So it will be more helpful in the answer writing part. Also in the mains, also in the prelims part, there are things that needs to be kept in mind while reading कि हाँ ये prelims में आ सकता है and हाँ ये mains में आ सकता है. So ये हम further जब हम magazine को discuss करेंगे तो we'll look into that aspect also कि कौन सा हम किस समय पर implement कर सकते हैं कि this is for pre and this is for mains. We'll categorize that and we'll also categorize which one is the integrated part. दैट मीन्स जो दोनों प्री प्लस मेंस दोनों में यूटिलाइज किया जा सकता है कौन कौन सा पॉइंट. विल लुक इनटू दैट आल्सो. फॉर दिस फ्यू रीजन आई हैव चूजन वाजीराम monthly current affairs magazine. Okay, so what is the schedule of this course? Usually the schedule for this course is, look, for the month of June, ideally this video should have been uploaded in the month of July. अगर मैं जून मंथ के मैगजीन का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो इसको जुलाई में अपलोड हो जाना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल रीजंस मैं वीडियो नहीं बना पाया. तो बस फॉर द मंथ ऑफ जून ये अगस्त में वीडियो अपलोड होगा, और जो अगस्त जुलाई की भी जो मंथली करेंट अफेयर्स मैगजीन होगी रिसाइटल्स की, वो भी अगस्त में अपलोड होगा. एंड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त इट विल बी अपलोडेड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. सो आई विल बी पंचुअल ऑन दैट इज़ फॉर श्योर. बस आपको जून तक एडजस्ट करना है क्योंकि ये 1 महीना लेट चल रहा है. ओके, एंड व्हाट विल बी द शेड्यूल यही आपका रहेगा कि ये सब्जेक्ट वाइज रहेगा. एज आई हैव प्रीवियसली टोल्ड यू, जैसे IR का एक सब्जेक्ट है, देयर विल बी द वीडियो ऑफ द कंप्लीट IR पोर्शन. फॉर द पोर्शन ऑफ इकोनॉमी का अलग वीडियो रहेगा, पॉलिटी उसका अलग वीडियो रहेगा. फॉर द आर्ट एंड कल्चर पोर्शन देयर विल बी अनदर वीडियो. फॉर मैप्स पोर्शन देयर विल बी अनदर वीडियो. मतलब जितना आपका इंडेक्स में कंटेंट दिया हुआ है उतने नंबर ऑफ वीडियोज रहेंगे. ठीक है. What are the other plans on this channel? Look, there are various other plans on this channel, and that plan I will only initiate a thing that would be beneficial for you. क्योंकि मेरे को वही चीज़ बनाने में इंटरेस्ट आता है
जो आपको बेनिफिट करे और जो मुझे भी बेनिफिट करे. Shall not make any relevant content. Any irrelevant content will not be made on this channel. Only relevant content. But what kind of relevant content? I'll be uploading with the magazine of Kurukshetra. Also Yojana. These are the two primary things that will be uploaded on the channel itself, and the complete book of Kurukshetra and Yojana monthly wise will be uploaded in just one video each. जिससे कि आपको ये होगा कि अगर आपको मेन से और फॉर्डर पॉइंट की ज़रूरत पड़ी है, फिर स्टार्ट दी आंसर राइटिंग आफ्टर कंप्लीटिंग योर बेसिक कोर्स, बेसिक जो आपके बुक्स अगर आप उसको कंप्लीट करने के बाद आंसर राइटिंग शुरू करते हो, यू विल नॉट लैक इन कंटेंट अगर आप योजना और कुरुक्षेत्र को भी फॉलो करोगे. और इफ़ यू सी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट फॉलो योजना एंड कुरुक्षेत्र, सो इफ़ यू फॉलो आपको एक एज मिल जाएगा. तो ये दो चीज़ें आएंगी. फर्दर विल हम जब इसके रिस्पेक्टिव वीडियोस बनाएंगे तब इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे. बट लेट्स गेट फर्दर स्टार्टेड. हाँ, वन मोर पॉइंट. दिस PDF which I'm going to explain आफ्टरवर्ड्स, तो ये PDF हाईलाइटेड PDF है. मैंने इसको फर्स्ट टाइम रीड कर लिया है, मैंने इसको हाईलाइट भी कर लिया है. द इम्पोर्टेंट स्टफ्स, द पॉइंट्स, द डेटा, द ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें हाईलाइटेड है. सो इट वुड बी ईजियर कि आप जब इसको रिवाइज करोगे यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दी हाईलाइटेड वंस. तो आपको पूरी सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू दी हाईलाइटेड पॉइंट्स, यू विल गेट टू नो कि हाँ हमने इसको पढ़ा था तो ये क्या है. तो इससे आपको एक हेल्प मिलेगा. और ये कहाँ पर मिलेगा? यू विल गेट इट इन द टेलीग्राम चैनल. I'll create a Telegram channel and provide you the link in the description box. Okay. And if you want to download the complete magazine of Vajiram, you can go onto their official website and download it from there. It is free of cost. Okay. Without wasting much of our time, let's get started. So this is the, before starting this, let's look into the content of what is there in the index. So before starting, there are 7 important articles that has been given in this month IR portion. The first one is Kosovo Serbia tensions, क्यों हुआ ये. काकोवा डैम रशिया में जो है उसकी वजह से क्या क्या इम्प्लीकेशंस हुए हैं उसको, वो क्यों न्यूज़ में, हम वो सभी को देखेंगे. US डिसाइड टू रीज्वाइन यूनेस्को आफ्टर लीविंग दैट. वैगनर म्यूटिनी, ये रशिया में हुआ था, उसके बारे में हम देखेंगे. चाइना पाकिस्तान का न्यूक्लियर डील हुआ था, उसके बारे में हम देखेंगे. इंदिरा गांधी जी की जो असैसिनेशन हुई थी उसकी किलिंग को सेलिब्रेट किया जाए इन कर्नाटक. अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बट विल ऑल्सो लुक इनटू दिस इंसिडेंट. US नेवल कैडेट्स टू ट्रेन विद इंडियन नेवी. तो ये IR और सिक्योरिटी के पर्पज़ से, डिफेंस के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को सूरीनेम के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के बारे में नवाजा गया, उनसे नवाजा गया. सो विल लुक ऑन टू दैट ऑल्सो. एंड इंडिया गिफ्ट मिसाइल कॉर्बेट टू INS तिरपान टू वियतनाम. सो एक चाइना के साथ जो अपना लैंड टेरिटोरियल और लैंड बॉर्डर शेयर करता है या फिर अपना सी का बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, ऐसे कंट्री को हमने एक वॉरशिप गिफ्ट किया है. सो इट्स अ बिगर थिंग, हम इसको भी देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज कोसोवो सर्बिया टेंशंस. ओके. So violent clashes have taken place in Kosovo between the ethnic Serbs police belonging to the Albanian-led government. NATO has announced of deploying an extra of 700 troops, not important how much is the number, to the country after more than 30 of its peacekeepers were injured. तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि कोसोवो है कहाँ. Okay. So this is the map of the Serbia, Kosovo and the Eastern Europe. If you look onto this map, this is the country of Serbia. आप देख रहे हो, दिस इज द कंट्री ऑफ सर्बिया.
and below this there is a country called Kosovo. So in the 1900s there was a country जिसका नाम था यूगोस्लाविया. यूगोस्लाविया नाम का देश था. 1900s में उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है एंड इट ब्रोक अप इनटू वेरियस कंट्रीज, और जिसमें उसका सबसे बड़ा जो सक्सेसर था डैट वाज सर्बिया. विल रीड इट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री सेक्शन. उसका डिसइंटीग्रेशन यूगोस्लाविया का. सर्बिया के अंदर में 2 रीजन्स आते थे, एक जिसमें एक था प्रोमिनेंट था कोसोवो. कोसोवो इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री एंड सर्बिया इज ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस. So this is a Muslim majority country and these are the Orthodox Christians. So the region of Kosovo started demanding independence from the Serbia. So this was the, और उसके बाद उसने एक armed conflict भी हुआ था. Kosovo unilaterally declared independence from Serbia. So various countries recognize Kosovo and various countries do not recognize the existence of Kosovo. So हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे. Let's get started. The current round of violence took place after ethnic Serbs tried to prevent the Albanian mayors from taking charge in the local council. लोकल काउंसिल का इलेक्शन हुआ था जिसमें जो अल्बेनियन मेयर्स थे वो अपना प्लेस चार्ज कर रहे थे. उन्होंने इलेक्शन जीत दिया था. इलेक्शन जीतने में एक बैकग्राउंड में एक हुआ था कि जो एथनिक सर्ब्स थे उन्होंने नदर्न पार्ट ऑफ कोसोवो में जो इलेक्शन हुए थे उनको बॉयकॉट कर दिया था. ओके तो जब बॉयकॉट हुआ तो उसका जो टर्नआउट था इलेक्शन था वो ओनली 3.5% था. मतलब ओनली 35 आउट ऑफ 1000 पीपल हैव वोटेड. तो बहुत ही कम टर्नआउट था, इसलिए ये इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया गया बाय द सर्ब्स और उससे शैम डिक्लेयर कर दिया गया. बट देन ऑल्सो द अल्बेनियन लेड गवर्नमेंट उन्होंने आगे बढ़ा दैट वी हैव वन द इलेक्शन एंड द अल्बेनियन मेयर्स वे टेकिंग द चार्ज ऑफ द लोकल काउंसिल. ethnic Serbs protested that they are minority in Kosovo and they boycotted the election. So they protested कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ओनली 3.5% ही टर्न आउट है इलेक्शन का और आपको दोबारा से इलेक्शन कराना चाहिए, ये इलेक्शन मैलाफाइड है. बट ऐसा हुआ नहीं. जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तब प्रोटेस्ट को दबाया गया एंड वायलेंट क्लैशेस टुक प्लेस. So this is the background of this news. All about Kosovo conflict, ethnicity in its center. कोसोवो का अगर आप पॉपुलेशन देखें तो इट इज जस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 1.5 मिलियन. जस्ट अ सेकेंड. ऑफ ओनली 1.5 मिलियन पॉपुलेशन 92% जो इसमें हैं अल्बेनियंस हैं. Albanians are constitute of the 92% and 6% of Serbians. 92% Albanians are they are Muslims and these 6% Serbians are Orthodox Christians. So this is the religious roadmap or the religious demography of this. Serbs are the ethnic Orthodox Christian. Albanians are Muslims. For many Serbian, the Kosovo region is the heart of the national और द रिलीजियस आइडेंटिटी. ऑफकोर्स अगर सर्ब्स अगर रह रहे हैं कोसोवो में तो सर्ब्स के लिए वो रिलीजियस आइडेंटिटी है. अगर कोसोवो में अल्बेनियंस रह रहे हैं तो उनके लिए नेशनल आइडेंटिटी है और वो बोलेंगे मेरा है, ये बोलेंगे मेरा है. सो दिस इज़ द रूट कॉज. अब उसके अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो मैंने आपको बताया था कि यूगोस्लाविया नाम का एक यूनाइटेड कंट्री होता था. ओके यूगोस्लाविया नाम का यूनाइटेड कंट्री होता था. 1990s में उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और उसके बाद सर्बिया इमर्ज होता है. तो कोसोवो नाम का एक प्रोविंस उसमें एग्जिस्ट करता था, उसी में लाई करता था अंडर द रूल ऑफ सर्बिया. और कोसोवो स्टार्टेड डिमांडिंग ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस फ्रॉम सर्बिया. दिस वाज रिजेक्टेड बाय सर्बिया. भाई कोई भी अगर आप ऑटोनॉमी मांगोगे, फॉर एग्जांपल एनी स्टेट इन इंडिया, फॉर एग्जांपल झारखंड और मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, इफ दे स्टार्ट डिमांडिंग इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी तो भारत सरकार जाती रही, इट विल रिजेक्ट कि नहीं आप इंडिया के यूनियन के अंडर हो. You can run the state government but you cannot declare independence. So ये डेवलपमेंट उस समय था. तो जिस समय यूगोस्लाविया था उस समय द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया इंक्लूडेड द रीजन ऑफ कोसोवो एंड वोजोवदिना.
वोजवोदिना। सो कोसोवो और वोजवोदिना ये दो रीजन था, ये सर्बिया के अंडर में आता था। बट सर्बिया के अंडर में ये कंप्लीट उनके अंडर में नहीं थे। rather than the Kosovo and Vojvodina, they held the status of autonomous province. तो autonomous province का स्टेटस वो होल्ड करते थे इन सर्बिया, कोसोवो और वोजवोदिना। 1998 में क्या होता है कि आर्म्ड क्लासेस ब्रोक आउट हो जाती हैं। कोसोवो लिबरेशन आर्मी जो कोसोवो को इंडिपेंडेंस दिलाना चाहते थे वर्सेस दी सर्बियन फोर्सेस। कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो नेटो का एफर्ट्स आता है उसमें। यू नो नेटो इट इज़ डोमिनेटेड बाय यूएसए, उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया जो ऑर्गेनाइजेशन इन द कोल्ड वॉर एरा, यूएसए के द्वारा। तो उन्होंने इंटरवीन किया। इट रिजल्टेड इनटू द मिलिट्री इंटरवेंशन इन 1999. NATO conducted a bombing campaign against the Serbian targets and forced the withdrawal of Serbian security forces from Kosovo. Just look at the hypocrisy of the NATO and the USA. सर्बिया का एक रीजन है, उसमें से एक रीजन है कोसोवो, सर्बिया कंट्री उसका एक रीजन है कोसोवो, वहाँ पर इंडिपेंडेंस की डिमांड चल रही है या फिर जो भी आर्म स्ट्रगल हो रहा है, नेटो इंटरवीन्ड और उसने सर्बियन फोर्सेस को ही बोला कि आप कोसोवो से बाहर जाओ। ओके, तो ये था the NATO-led Kosovo force is still based in Kosovo and the current state is not important. तो उसके बाद ये हो गया। 2008 में क्या हुआ, कोसोवो ने यूनिलैटरली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। सो आउट ऑफ 193 members of United Nations, only 99 countries recognize the existence of Kosovo as an independent country, including USA. Obviously अगर उसी ने ब्रेकअप कराया है सर्बिया का तो वो तो करेगा ही। UK and the 22 out of 27 European Union के countries. China, Russia do not recognize Kosovo and they have blocked the membership of UN. Absolutely, जब US जिस कैंप में है, China and Russia will not be in the same camp. India also doesn't recognize Kosovo and Pakistan does recognize Kosovo. Pakistan का होना obvious है because Kosovo is a Muslim majority country and where there is a Muslim population, Pakistan will अपना उसमें गर्दन ज़रूर घुसाएगा। सो द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ कोसोवो एंड सर्बिया हम देखते हैं। सर्बिया का अगर हम बात करें तो सर्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है, हमने यहाँ पर अभी मैप में देखा था। लेट्स लुक अगेन, ये हुआ आपका सर्बिया का रीजन। ओके, ये हुआ आपका सर्बिया का रीजन। तो सर्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है, हंगरी इसके बॉर्डर में आता है, रोमानिया, बल्गेरिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, कोसोवो इन द साउथ वेस्ट, मॉन्टेनीग्रो इन द वेस्ट, बॉस्निया हर्जेगोविना इन द नॉर्थ वेस्ट। आप इस मैप में देख लेना जो सारे कंट्रीज़ है, बिकॉज ये न्यूज़ में है इसलिए इससे कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी बार से प्रीलिम्स 2023 में आपका बॉर्डर कंट्रीज ऑफ यूक्रेन का क्वेश्चन आया था। सो द बॉर्डर कंट्री ऑफ यूक्रेन का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। सो लेट्स स्टार मार्क इट। ओके, द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी इज बलग्रेड, बस कैपिटल हमें याद रखना है। कोसोवो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द रिपब्लिक ऑफ कोसोवो इज अ पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड कंट्री situated in the central part of the Balkan Peninsula. तो इस पेनिनसुला को बल्कन पेनिनसुला कहते हैं। कोसोवो डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम सर्बिया इन 2008, एब्सोल्युटली हमने पहले देखा है। नीदर डज रशिया, इंडिया एंड चाइना रिकॉग्नाइज द कोसोवो का इंडिपेंडेंस as well as the 5 European countries that is Spain, Slovakia, Cyprus, Romania and Greece recognize it. So यहाँ पर ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था आई गेस, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सही कर दिया है। Okay. It is bordered by Serbia in the north, in the east, North Macedonia in the southeast, Albania to the southwest, Montenegro to the west. So आप इनका भी मैप ज़रूर देख लेना बिकॉज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज न्यूज़ में है। ये हुआ सर्बिया का मैप, कोसोवो का मैप, सॉरी, ये हुआ कोसोवो का मैप, आप इसको देख लेना। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज काकोनोवा डैम। काकोनोवा डैम पे भी कुछ न्यूज़ है, उसको भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। Flood waters were released throughout the conflict area after a massive Soviet-era dam, Takova Dam,
on the Dnipro River that separates Ukraine and Russian and Ukrainian forces in the southern Ukraine was breached. तो फ्लड वाटर्स रिलीज किया गया था काथोवा डैम से इन द निप्रो रिवर डेज आइलैंड. तो निप्रो रिवर में वाटर रिलीज किया गया था और ये सेपरेट करता है द रशियन एंड द यूरोपियन फोर्सेस. Russian official presented inconsistent versions, some claiming that it was destroyed by Ukrainian shelling, other claiming that it was collapsed due to the result of earlier damage. तो अपना अपना वर्जन है. रशिया यूक्रेन को ब्लेम डाल रहा है, यूक्रेन रशिया को ब्लेम डाल रहा है. On the other hand, Ukraine claimed that Russia had demolished it. About the dam, important dam है, हम इसको देखते हैं. Not important इसका क्या height and width and never asked in UPSC. It was built in 1956 on the Dnipro River as a part of the Katova hydroelectricity power plant. The reservoir volume equal to the Great Salt Lake of USA of Utah. It supplies water to the Crimean Peninsula. Crimean Peninsula आपका ये वाला region हो गया. ये this region is the Crimean Peninsula. It was annexed by the Russia in 2014, जिससे कि जो G8 का मेंबरशिप था it was reduced to G7. ओके, आपको मे बी इसके बारे में पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ. G7 का जो मेंबरशिप है आज के समय उसमें 7 कंट्रीज हैं. 2014 से पहले वो G8 हुआ करता था प्लस रशिया, इसमें रशिया भी एडेड था. बट 2014 में द रशिया एनेक्ट द रीजन ऑफ क्रीमिया फ्रॉम यूक्रेन. उसके बाद उनकी रशिया की मेंबरशिप को हटा दिया गया एंड नाउ द क्रीमिया इज अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया. सो ये पानी जो पहुंचाता है ये सप्लाई करता है वाटर थ्रू टू द क्रीमियन पेनिनसुला ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट विच इज ऑल्सो अंडर द रशिया कंट्रोल. तो ये था आपका इस न्यूज़. अगले न्यूज़ पर हम लोग आते हैं. US decide to rejoin UNESCO. The United States have plans to rejoin UNESCO after a decade-long dispute sparked by the inclusion of the Palestine as a member. The return of the United States along with the payment of $600 million back dues is a significant advantage or the financial boost for the US initiatives. Before leaving, the US contributed about 22% of the agency overall funding. Actually इशू क्या था ना, इशू ये था कि एक प्रपोजल था यूनेस्को के अंदर कि पैलेस्तीन को भी मेंबर बनाना है. एंड यू नो कि इजराइल वर्सेस पैलेस्तीन चलता है अभी वर्ल्ड अफेयर्स में. अगर आप जियो पॉलिटिक्स में देखो तो इजराइल वर्सेस पैलेस्तीन हमेशा चलता है. ठीक है. USA सपोर्ट्स इजराइल, द अरब कंट्री सपोर्ट्स पैलेस्तीन. सो USA इज ऑन द ब्लॉक ऑफ द इजराइल एंड because it is in the block, वो USA was rejecting the membership of Palestine into the UNESCO. but जब इनका डिमांड को पूरा नहीं किया, it decided to withdraw from it. so ये बहुत ही बड़ा सेटबैक था फॉर द यूनेस्को. ये क्यों सेटबैक था यूनेस्को के लिए? क्योंकि आप यहाँ देखो ये US जो है वो 22% कंट्रीब्यूट करता था टू द एजेंसी का ओवरऑल फंडिंग. मतलब अगर 100 रुपये यूनेस्को में आ रहा है तो उसमें से 22% इज कंट्रीब्यूटेड बाय USA. इसलिए एक फाइनेंशियल सेटबैक लगा था यूनेस्को को व्हेन US withdrew from the membership of UNESCO. Okay. So the decision to return was motivated by the concern that China is filling the gap of US in the UNESCO policy making, notably setting the standards for artificial intelligence technology education around the world. Absolutely majority reason तो यही होता है कहीं भी USA के एक्शन था. That is with the threat of China. चाइना जो है वो USA की प्लेस को ले रहा है, जो भी पॉलिसी मेकिंग में है उसका ये गैप को फुलफिल कर रहा है. फंडिंग भी ऑब्वियसली कर रहा है बिकॉज इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन में भी स्टैंडर्ड सेट कर रहा है और पॉलिसी में भी मेकिंग में भी काम कर रहा है. सो दिस इज प्रिज्यूम्ड थ्रेट टू USA, इसलिए वो रिज्वाइन करना चाह रहा है बाय पेइंग द ह्यूज ड्यूज ऑफ $600 million. So what is the background of it? The US and Israel stopped funding of UNESCO after it voted for the inclusion of Palestine as a
member state in 2011. The Trump administration decided in 2017 to withdraw from the agency altogether the following year. United States has previously withdrawn from the UNESCO in 1984 during the Cold War era. The country rejoined the organization in 2003 under the administration of President George W. Bush. ये थोड़ा हिस्ट्री है, इसके बारे में है कि यूएस और इसराइल ने अपना फंडिंग को बंद कर दिया टू द यूनेस्को आफ्टर 2011 जब वो इंक्लूड कर रहे थे पैलेस्टीन को एज अ मेंबर स्टेट. फाइनली इन 2017 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यूएसए ने कंप्लीट विड्रॉल कर लिया फ्रॉम द यूनेस्को. पहले इन्होंने फंडिंग स्टॉप किया, उसके बाद कंप्लीट विड्रॉल कर लिया. इससे पहले भी 1984 में यूनेस्को की मेंबरशिप यूएसए ने छोड़ी थी एंड दैट वाज इन द कोल्ड वॉर एरा, और उसके बाद वापस रीज्वाइन की थी 2003 में. सो वन ऑफ द मेन रीजन्स कंसर्न्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन परसीव्ड एंटी इजराइल बेसिस. ऑब्वियसली अगर ये पैलेस्टीन को इंक्लूड कर रहे हैं तो उनका एंटी इजराइल ग्राउंड्स हो गई. यस गवर्नमेंट डिसाइडेड क्रिटिसाइज यूनेस्को फॉर हैंडलिंग द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट and its recognition of the Palestine as its member state. The other factor was the financial concern. पहला तो रीज़न ये था कि इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट में द यूनेस्को was tilting itself towards the Palestine. तो इस रीजन था. सेकंड था फिनेंशियल कंसर्न, क्योंकि आप देखो तो यूएसए जो है वो 22% कंट्रीब्यूटर्स है. 22% इज़ अ ह्यूज नंबर. आप मतलब देखो ऑलमोस्ट अराउंड वन फिफ्थ हो गया, 1/4, मोर देन 1/5, लेस देन 1/4. सो ये आपका बहुत बड़ा नंबर हो जाता है. येस यूएसए हैज़ अ लॉट ऑफ मनी बट दैट इज़ ऑल्सो हार्ड एंड मनी, तो उन्हें भी फील होता है. द यूएसए हैज़ बीन कंट्रीब्यूटिंग टू अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द यूनेस्को बजट. द यूएस गवर्नमेंट कंसर्न्स अबाउट फिस्कल मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी विद इन द यूनेस्को. जब ये ऑर्गेनाइजेशन आपके काम का आएगा ही नहीं तो आप इसको क्यों बेकार में फंडिंग दोगे, है ना. ये टैक्स पेयर्स का मनी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस का टैक्स पेयर्स का मनी है. सिर्फ एक तो ये एंटी यूएसए एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर रहा है. एंटी यूएसए डैट मीन्स एंटी इजराइल एक्टिविटीज़. सो फिर भी यूनेस्को में मेजॉरिटी फंडिंग इसलिए आ रहा है, तो इसलिए इन्होंने छोड़ा था मेंबरशिप ऑफ द यूनेस्को. यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन निकल के आता है, ऑब्वियसली यूनेस्को. सो यूनेस्को स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन. ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना कि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, प्रीलिम्स में आ सकता है. द कॉन्स्टिट्यूशन विच एंटर्ड इनटू द फोर्स इन 1946 called for the promotion of international collaboration, science and culture. As you know 1946 में यूनाइटेड नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था, और उसके बाद ये डिमांड हुआ कि इंटरनेशनल कोलाबोरेशन किया जाए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर. इसका हेडक्वार्टर जो है ये फ्रांस से पेरिस में है. इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है. So what is the goal of UNESCO? The primary goal of UNESCO is to contribute to the peace and the security by promoting the collaboration among the member nation through education, science, culture, and to promote sustainable development and intercultural dialogue. ये सारा गोल्स है, आप इसको मेन से आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो. फिर ये सर्व करेगा एज अ फॉर्डर पॉइंट. ओके, सो व्हाट आर द की फोकस्ड एरियाज ऑफ यूनेस्को. सबसे पहला जो की फोकस्ड एरियाज है दैट इज द फील्ड ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन का फील्ड में सबसे पहला फोकस्ड एरियाज है. यूनेस्को promotes education for all, advocating for the access of education, improving teacher training, fostering global partnership. या ये जो भी है ये भी आप फॉर्डर पॉइंट्स में इंक्लूड कर सकते हो. सेकेंड इसका क्या है, नेचुरल साइंस इन द फील्ड ऑफ नेचुरल साइंस. इट सपोर्ट्स साइंटिफिक रिसर्च एंड द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस, that is climate change, biodiversity loss, sustainable development. Culture. UNESCO works to safeguard, promote cultural heritage, both tangible and intangible, including the monuments, sites, tradition and language. It also fosters the cultural diversity and intercultural dialogue. Communication and information. UNESCO promotes freedom of expression, obviously,
media development, access to information. It aims to foster a free, independent, pluralistic media environment. UNESCO designates and maintains a list of World Heritage Sites which are placed for outstanding universal key values that deserve the protection for the future generation. So जो भी वर्ल्ड के लिए बेहतर चीज़ें हैं उसको यूनेस्को प्रमोट करता है. तो अगर आपको आंसर राइटिंग में कुछ पॉइंट्स नहीं भी याद आ रहा है, ये एक ऐसा यूनिवर्सल अम्ब्रेला टॉपिक है जिसमें आप खुद से भी कर सकते हैं और ये सारा आपका फॉर्डर पॉइंट्स हो सकता है. सो मेक अ नोट ऑफ इट. नोट क्या, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप इसी को हाईलाइटेड पीडीएफ को ही देख लेना. ओके. So what are the key report that is published by UNESCO? Global Education Monitoring Report. There is education. You can remember it from that. United Nations का World Water Development Report. Okay. World Trends in Freedom of Expression and Media Development. आप देखो फ्रीडम एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन में मीडिया डेवलपमेंट इसका एक गोल है, एजेंडा है. एंड ग्लोबल ओशन साइंस रिपोर्ट. सो ये एक आपको याद रखना है, बाकी आप ये तीन रिलेट कर सकते हो. एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव हाईलाइटेड दिस बिकॉज ये आपका प्रीलिम्स में बहुत बार पूछता है. ठीक है, ये प्रीलिम्स में पूछता है, सो ट्राई टू रिमेंबर दिस ऑल्सो. वैगनर म्यूटिनी. आपको पता होगा कि वैगनर म्यूटिनी अभी रशिया में हुआ था. इट वॉज वेरी मच इन न्यूज़. दो दिन में ये म्यूटिनी समाप्त हो गया था. सो प्रिगोजिन, who is the chief of the Russia Wagner private military company, staged a short-lived mutiny against the country's defense establishment. So Prigozhin जो वैगनर ग्रुप का हेड है, और वैगनर ग्रुप क्या है, ये एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है. इंडिया में हम लोग रहते हैं, ऐसा कोई प्राइवेट मिलिट्री हम नहीं जानते, बट अभी एट द वर्ल्ड स्टेज बहुत सारी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी आ रही है. उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है. आप उन्हें जहाँ भी जंग पर भेज दो, दे आर रेडी टू फाइट द वॉर. बट उनको बहुत ही हाई पे मिलता है और ये उनको झंडे वंडे से कोई मतलब नहीं रहता है. डैट जो भी रहता है कि हमें अपने देश के लिए लड़ना, ये लड़ना, वो लड़ना, इट डजेंट मैटर्स टू देम. उन्हें बस पैसे चाहिए और वो कहीं भी लड़ने को इन जनरल तैयार हो जाते हैं. सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट मिलिट्री कंपनी. बहुत सारी कंट्रीज रखती हैं और उसी में से एक कंट्री है द कंट्री ऑफ रशिया, रशियन फेडरेशन. उसी का वैगनर मिलिट्री कंपनी है जिसका हेड है प्रिगोजिन. On the June 24, the Russian mercenary chief Prigozhin announced that Wagner troops had taken control of Rostov-on-Don in the southern Russia. He also launched a March of Justice with a convoy of armed men, armed vehicles towards the Moscow, that is the capital of Russia. The rebellion was later called off. और ये किसके द्वारा called off किया गया था? By the apologies. It was called off by the president of Belarus. बेलारूस इज़ द नेबरिंग कंट्री ऑफ रशिया. और आप जानते होंगे कि रशिया बेलारूस जो रिलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस, सो उनके इंटरवेंशन के बाद जो प्रिकोजिन है, इसने जो म्यूटिनी है इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था. द वैगनर ग्रुप फर्स्ट सरफेस ड्यूरिंग द रशिया एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया इन 2014. उस समय इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टर दैट सप्लाइज सोल्जर्स टू हायर. एज आई एक्सप्लेन्ड, इसका ओनर और हेड प्रिगोजिन है, येवजेनी प्रिगोजिन, अगर इसका पूरा नाम तो बोले. अपार्ट फ्रॉम यूक्रेन, वैगनर ग्रुप इज ऑल्सो एक्टिव इन द वेस्ट एशिया एंड इन द सेवरल कंट्रीज ऑफ अफ्रीका. When Putin decided to invade Ukraine in 2022, Prigozhin and his Wagner group were the heart of the Russian operations. इनका बहुत ही प्राइम रोल था इन द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. जो रशिया यूक्रेन वॉर्स 1.5 ईयर्स से चल रही है, इसमें जो वैगनर ग्रुप है इसका काफ़ी बड़ा रोल था. बिकॉज दे वेर द हार्ट ऑफ द ऑपरेशन. वो बहुत ही हाई एंड ऑपरेशन को कैरी आउट कर रहे थे. द ऑर्गेनाइजेशन वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द massacres, rape and torture of civilian in the Ukraine का बुचा that took place in the March 22. और ये इस इशू को यूनाइटेड नेशंस में भी रेस किया गया था द बुचा किलिंग्स के नाम से. उसमें मास मर्डर्स हुए थे, टॉर्चर हुए थे, सिविलियंस रेप्स हुए थे बाय द रशियन अथॉरिटीज़ और द सोल्जर्स. उसमें एक सिटी आता है जिस सिटी का नाम है रोस्टोव-ऑन-डॉन. ये लार्जेस्ट सिटी इन द सदर्न वेस्ट पार्ट ऑफ द रशिया.
आप यहाँ मैप पे देख लो, दिस इज द कंट्री ऑफ मॉस्को। यहाँ पे मैप में ये रशिया है, रोस्टोव डॉन है रशिया का। City is the home of millions of people, administration center of Rostov on Blast, and the southern federal country of Federal District of Russia. The region borders eastern Ukraine, with where the ongoing Russia-Ukraine conflict have been raging. इसका बस आप नाम याद रख लेना और एक ओवरऑल लोकेशन याद रख लेना कि कौन से पार्ट में, कहीं आप यहाँ पे मार्क कराओ, कहीं यहाँ पे मार्क कराओ, कहीं यहाँ पे आ जाओ, कहीं यहाँ पर आ जाओ। इससे बेटर है कि ये सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द रशिया है, सदर्न वेस्ट में। आप बस इतना याद रखना, ओके। The city itself approximately just 100 kilometers from the border and is located in the main route between the border of the Ukraine का Donbass region and the Moscow. Donbass region आप जानते हो, इसको रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया, ये यूक्रेन का रीजन है, and Russia have declared it as an independent country. Consequently, it is a crucial command and logistic hub of the Russia army, housing the headquarters of the Russia का southern military district. According to media reports, it provides several supports for the Wagner Group का अगर हम लोग बात करें, it provides several supports to different government for often exchange of gold and mine. तो ये दूसरे गवर्नमेंट को भी ये सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड माइंस, गोल्ड एंड डायमंड के माइंस। अब नेक्स्ट न्यूज़ आता है आपका चाइना पाकिस्तान का न्यूक्लियर डील। रिसेंटली एक न्यूक्लियर डील साइन हुआ है फॉर द 1200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट का इन द चश्मा न्यूक्लियर कम्प्लेक्स इन पाकिस्तान। इट इज़ द 5th रिएक्टर जिसका भी ये साइन किया गया है at the Chashma nuclear complex C5. C5 will be the biggest reactor of the Chashma, where China has already constructed 4 of the complex. It is not important, I have marked it. ऐसा क्वेश्चन नहीं, आपका क्वेश्चन में आएगा ना, आपको याद रहेगा ना, आपको लिखने को आएगा। इम्प्लीकेशन ऑफ चाइना पाकिस्तान का न्यूक्लियर डील। China civilian nuclear project with Pakistan have come under scrutiny. This is because NSG explicitly prohibits the transfer of nuclear technology to its member countries that have not signed nuclear non-proliferation treaty. सब जानते हो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स क्या होता है। न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप ये एक ऐसा ग्रुप है जो न्यूक्लियर मटेरियल्स का सप्लाई और वो जो सब प्रोक्योरमेंट, हैंडलिंग, यूज़, इन सभी चीज़ों को देखता है। न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको अलाउड नहीं है टू ट्रांसफ़र द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और द न्यूक्लियर वेपन्स, रॉ मटेरियल्स टू द मेंबर दैट हैव नॉट साइंड द NPT। एंड एज यू नो NPT को ना इंडिया ने साइन किया है, ना रशिया ने साइन किया, ना नॉर्थ कोरिया ने साइन किया, ना साउथ सुडान ने साइन किया। व्हाट इज़ NPT, व्हाट इज़ न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप? आई हैव टोल्ड यू ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इसको देखते हैं ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल्स, न्यूक्लियर रॉ मटेरियल से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स को देखते हैं। और ये प्रोहिबिट करता है कि जो NPT को जिसने साइन नहीं किया है वो इसको नहीं, उनको ट्रांसफ़र ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाएगा। और ये क्या है, मैं इसके बारे में किसी एक दिन बहुत ही डिटेल्ड वीडियो ले आऊँगा, बिकॉज माई ऑप्शनल इज़ पॉलिटिकल साइंस एंड IR। सो मैं इस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पे, बिकॉज इट इज़ इन न्यूज़, सो मैं इस पे डिटेल्ड वीडियो ले आऊँगा। चाइना हैव आर्ग्यूड दैट Chashma 3 and Chashma 4 reactors were conceived under its earlier Chashma deals were with Pakistan that were predated before joining of its NSG में जब चाइना ने मेंबरशिप लिया वो ये कहता है कि Chashma 3 और Chashma 4 जो प्रोजेक्ट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये पहले कंप्लीट हो चुका था बिफोर चाइना ज्वाइंड द NSG। सो ये एक रूल का वायलेशन नहीं है। सो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडिया US एंड न्यूक्लियर डील, हम इसे देखते हैं। India and US had to seek the waiver from NSG because India is not the part of the NSG। आप NSG countries को देख लो, जो ग्रीन पोर्शन में है that are the part of the NSG। India is seeking the membership of NSG but उन्हें मिल नहीं रहा है because India is not ready to sign the NPT। So आप ये देख सकते हो हमारा प्यारा भारत, द प्रशांत धवन सर्वाइव्स
तो ये भारत है, इंडिया है, और इसने साइन नहीं किया. नीदर डज पाकिस्तान हैव डन सो. सो 2008 में NSG से वेवर मिला, एंड देन इंडिया एंड US हैड साइन द India-US civil nuclear deal. However, neither Pakistan nor China have got waiver from the current deal. India was granted waiver after it undertook a number of commitment. इंडिया ने बहुत सारा कमिटमेंट किया, तब जाकर के उसको वेवर मिला. इतना इजी नहीं था बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्रेशर एंड ऑल. चाइना का उसमें वो हर समय अड़ंगा डाल देता है, कबाब में हड्डी बन जाता है चाइना जब भी इंडिया कुछ भी एडवांसमेंट करना चाहता है इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स. सो इंडिया ने क्या कमिटमेंट किया? इट प्लेस्ड इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज अंडर द IAEA. व्हाट इज IAEA? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. सेकेंड कमिटमेंट जो था, इट सेपरेटेड सिविलियन एंड मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स एंड कंटिन्यूड मोराटोरियम ऑन टेस्टिंग. तो इसने टेस्टिंग को, इंडिया ने अपने टेस्टिंग को रोक दिया, अपने जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसको IAEA के अंडर में डाल दिया, फॉर अंडर द स्क्रूटनी ऑफ IAEA. और उसने अपने सिविलियन एंड मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को भी सेपरेट कर दिया. सो बाय दीज स्टेप्स इंडिया वाज ग्रांटेड वेवर बाय द NSG. ओके. पाकिस्तान हैज़ नॉट सच कमिटमेंट फॉर दिस डील. उन्होंने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया बिकॉज एवरीबडी नोज पाकिस्तान का कैसा मेंटालिटी है. वो कभी इतना अपना इस IAEA के अंडर में अपने न्यूक्लियर जो प्लेसिंग्स हैं उसको कभी भी स्क्रूटिनी में नहीं डालेगा. NSG के बारे में हम लोग बात करें तो NSG is a group of multilateral export control regime and a group of nuclear suppliers country. I have already told you. These groups seek to prevent nuclear proliferation by controlling the exports of materials, equipments, technology that can be used to manufacture the nuclear weapons. The NSG was founded in response to Indian nuclear test in May 1974, जब पहला टेस्ट किया गया under the leadership of श्रीमती इंदिरा गांधी जी. They first met on the November 1975. It is an informal organization and its guidelines are non-binding on its member countries. Decisions including on the membership are made by consensus. मतलब कोई भी अगर एक कंट्री इसमें से एग्री नहीं किया that they should include India in its group or not, so उस proposal को reject कर दिया जाएगा. So this is the reason why India is not given the membership of NSG. इंडिया NSG का मेंबरशिप चाहता है बट बिकॉज ऑफ दिस कंट्री चाइना उससे मेंबरशिप नहीं मिल पा रहा. करेंटली NSG हैज़ 48 पार्टिसिपेंट्स और 2023 और 24 में उसका जो चेयर होगा वो ब्राज़ील के पास होगा. ब्राज़ील विल होस्ट द समिट और एनीथिंग लाइक दैट. वो ब्राज़ील के पास होगा. सो इस चीज़ को भी हम याद रखेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव द एग्जाम. मेजॉरिटी ऑफ अस इज गोइंग टू गिव द एग्जाम इन 2024 और 2023-24 में NSG का चेयर है वो ब्राज़ील के पास है. सेलिब्रेशन ऑफ द इंदिरा गांधी किलिंग इन कनाडा. बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ. कंट्रोवर्सी हो गई जब सोशल मीडिया पे वीडियो सर्कुलेट हुआ जिसमें लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को सेलिब्रेट किया जा रहा था इन द कनाडा. सो उन्होंने ऐसा कुछ काम किया. इंदिरा गांधी को 1984 में असैसिनेट कर दिया गया था बाय द 2 सिख बॉडीगार्ड्स आफ्टर द मिलिट्री ऑपरेशन ब्लू स्टार. अ पोस्टर बिहाइंड उसने वो भी डिपिक्ट किया जा रहा था. The parade was allegedly organized by pro-Khalistani group that is demanding for the creation of a separate country of the Khalistan named Khalistan in the present Punjab region of India. They are not claiming the Punjab province of Pakistan. Why so I do not know. But वो इंडिया के पाकिस्तान प्रोविंस को, पाकिस्तान स्टेट को वो क्लेम कर रहे हैं कि दैट इज़ खालिस्तान और इन ग्रुप्स को प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स कहा जाता है. It is days before the 39th anniversary of Operation Blue Star. Okay. What is the Khalistan movement? It is a fight for separate sovereign state in the present Punjab, both in India and Pakistan, but none of the leaders of none of the terrorists of the pro-Khalistani group demand for the region of the Pakistan's Punjab. The movement was thrust in India following the Operation Blue Star in 1984 and Operation Black Thunder in 1986.
एंड 86 एंड 88। ये 2 ऑपरेशंस हुए थे। अगर मैं अभी इस ऑपरेशन के बारे में बताने लगा तो दिस वीडियो विल बी वेरी लार्ज, और ये ऑपरेशंस न्यूज़ में भी हैं बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, और इसका 39th एनिवर्सरी भी आ रहा है, अनफॉर्चुनेट एनिवर्सरी। सो ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर क्या था इंडियन आर्मी के द्वारा, इसके बारे में आई मेक अ सेपरेट वीडियो एंड अपलोड इट ऑन द चैनल। आप उनको देख लेना, इट विल बी मच मोर हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड कि 1984 में जब खालिस्तान का डिमांड बहुत ही ज़्यादा हाई था, तो भिंडरा वाले के खिलाफ इंडियन आर्मी में कैसे ऑपरेशन किया, कैसे सब कुछ हुआ, फिर ब्लैक थंडर का ऑपरेशन हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बारे में आई मेक अ सेपरेट वीडियो एंड अपलोड इट इन द चैनल, यू कैन लुक आउट टू दैट। ऑपरेशन ब्लू स्टार को जून 1, 1984 को लॉन्च किया गया था टू फ्लश आउट द मिलिटेंट्स फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल एंड टू न्यूट्रलाइज द टेररिस्ट भिंडरावाला। However, it continues to evoke sympathy and support among the sections of the Sikh population, especially in the Sikh diaspora in the countries such as Canada, UK and Australia, Khalistan and Canada. As per the 2021 census, Sikhs account for the 2.1% of the Canada population, not very large but ठीक-ठाक population है उनका 2.1%, क्योंकि कनाडा का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड दे आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजियस ग्रुप इन द कनाडा। आफ्टर इंडिया, कनाडा इज द होम ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सिख्स इन द वर्ल्ड। 2002 में टोरंटो बेस्ड पंजाबी आर्टिस्ट पंजाबी लैंग्वेज वीकली संज सवेरा ग्रीटेड इंदिरा गांधी's death anniversary with cover illustration of her mother. The magazine received various government advertisements and now a prominent daily in Canada. So आप देख लो कैसा hypocrisy है कनाडा का, that magazine in their country is celebrating the death of the former Prime Minister of India. Okay. Last year in Brampton, home to Canada largest Sikh population, a pro-Khalistani organization known as the Sikh for Justice. This is one of the सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इसे माना जाता है फॉर द डिमांड ऑफ खालिस्तान, सो कॉल्ड द रेफरेंडम ऑफ खालिस्तान। सो व्हाट आर द चैलेंजेस इन द इंडिया कनाडा रिलेशन? इंडिया कनाडा रिलेशन इसी रीजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया कनाडा रिलेशन में अगर हम लोग जाएँ तो इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। फर्स्ट इज देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द सेपरेटिस्ट खालिस्तानी ग्रुप। कनाडा हैज़ बीन प्रोवाइडिंग अ सेफ हेवन। हेवन होता है आपका मतलब एक ऐसा जगह जिस पे आपको कोई भी डर ना हो, आपको सिक्योरिटी एंड सब कुछ प्रोवाइड किया जाए। फॉर द सेपरेटिस्ट खालिस्तानी ग्रुप विच न्यू दिल्ली, दैट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सीज एज द लिबरल पार्टी पैंडरिंग ऑफ दिस ग्रुप। लिबरल पार्टी वही पार्टी है जो अभी कनाडा में पावर में है। डायस्पोरा सिक्स आर वेल रिप्रेजेंटेड इन द ट्रूडो गवर्नमेंट। जस्टिन ट्रूडो का जो गवर्नमेंट है उसमें सिक्स का काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, and some of them politically support the pro-Khalistani group. Jagmeet Jini Dhaliwal, whose New Democratic Party supports the Tridiu का minority government in Pakistan. तो जगमीत जिमी धालीवाल, इसका जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है ये सपोर्ट करता है जस्टिन ट्रूडो का गवर्नमेंट को। तो दैट इज़ द रीज़न वाई द कनाडा गवर्नमेंट हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द सिक्स। भाई जिसको अदर गवर्नमेंट ही उन्हीं की वजह से चल रहा है तो वो तो करेंगे ही। Last year also, the New Delhi, that is India, they objected the Canada permitting a Khalistani secessionist referendum in the Sikh diaspora. However, Canada is slow to act against the anti-India elements on the soil. Recently, Hindu temple near Toronto को भी vandalize किया गया था और उसके walls पे लिखा गया Crush India और slogans like that with anti-India graffiti. Concerned that Canada is very slow to act against the anti-India elements and the soils have been a constant irritant in the relationship. और भी other irritants है जैसे attack on the Indian origin people. So those Sikhs as well as the Hindus that do not support the the idea of Khalistan, उनके ऊपर काफ़ी अटैक होते हैं कनाडा में। Canada comments on the India का farmer protest, India's cancellation of democratic talks in response. तो जब इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे थे उस समय में भी कनाडा ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे। उसमें इन रिस्पॉन्स टू दैट इंडिया कैंसिल कर दिए थे अपने
डिप्लोमेटिक टाइज को एंड डिप्लोमेटिक टॉट्स को इन रिस्पॉन्स टू दैट कमिटमेंट्स और कमेंट्स. So the next topic is Saudi naval cadets train with the Indian Navy. For the very first time, 55 cadets of the Royal Saudi Naval Force, along with 5 directing staff, got training with the Indian Navy in Kochi, which is the headquarter of the India का Southern Naval Command. So बस इसके बारे में ये डेवलपमेंट है, बस इसे याद रखना, बहुत ज़्यादा इसमें न्यूज़ में कुछ दिया नहीं है. 55 कैडेट्स थे जिन्होंने इंडियन नेवी के साथ ट्रेन किया रॉयल सऊदी नेवल फोर्स से. कहाँ पर ट्रेन किया? तो कोची में. एंड द कोची इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडिया द सदर्न नेवल कमांड. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू conferred with the Suriname highest civilian award. President Draupadi Murmu has been conferred with the Suriname the highest civilian award. और उनके जो प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी के द्वारा उनके प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को सुरीनेम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया. एंड टू ऑनर टू द डीप रूटेड बायलैटरल ट्राइज बिटवीन सुरीनेम एंड प्रेसिडेंट मुर्मू. ही वॉज कन्फर्ड विद द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार. ये उनका हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, जैसे इंडिया में भारत रत्न है. भारत रत्न इंडिया में है, वैसे ही सुरीनेम में इस नाम का आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. एंड यू कैन सी जो उनके प्रेसिडेंट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, बाय द नेम सजेस्ट ये इंडियन ओरिजिन के ही हैं. और सुरीनेम में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हिंदू पॉपुलेशन रहती है. ये कॉलोनियल टाइम्स में वहाँ पे वर्क करने गए थे एंड उसके बाद वो वहाँ पर बस गए. एंड दे आर नॉट दी प्रोमिनेंट फिगर्स इन द कंट्री ऑफ सुरीनेम. India gives military corvette INS Tirpan to Vietnam. So this is the last article of the international relations subject. हम इसे देख लेते हैं, बहुत important है ये. India gifted the indigenously built in service missile corvette INS Tirpan to Vietnam to enhance the country's naval capacity. INS Tirpan is the third indigenously built Kursi class missile corvette. This marked the first instance of such gesture from India to any nation. मतलब इंडिया ने पहली बार कोई ऐसा इंडिजिनियसली बिल्ड वॉरशिप INS तिरपान एक कंट्री को एज अ कंट्री को गिफ्ट किया है. ये बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि इससे पहले इंडिया ने कभी ऐसा किसी कंट्री के साथ नहीं किया. India has previously provided smaller vessels and military equipment to the countries such as Maldives, Mauritius and even submarine to Myanmar. But एक वॉरशिप को देना, so it is the first instance of India gifting a warship to a Chinese neighbor with a coastline in the South China Sea. से एक इंडिया का मतलब वो जो कहते हैं ना आजकल इंडिया में बहुत ही ज़्यादा टर्म चल रहा है, वो है लाल आंखें. सो ये तरह का आपका हो जाएगा कि इंडिया इज शोइंग इट्स रेडाइज टू चाइना बाय गिफ्टिंग अ वॉरशिप टू अ कंट्री दैट इज हैज़ अ coastline border with China in the South China Sea. The transfer of Tirpan reflects India's commitment to assist the like-minded partners, enhancing the capacity and the capability. So what is the defense cooperation between India and Vietnam? India and Vietnam has shared a comprehensive strategic partnership since 2016. So 2016 से इंडिया और वियतनाम के बीच में comprehensive strategic partnership चल रही है. And cooperation, defense cooperation is the key pillar of this partnership. Vietnam is an important partner in India's Act East policy. What is Act East policy? Important policy है. I'll make a separate video on this and upload it in the channel. आप उसे भी देख सकते हो. It will वो आपका जो ग्रैप्सिंग पावर है, जो भी रिलेशंस इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने में वो एक तरह से बेडरॉक का काम करेगा. जो इन तरह की चीज़ें होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये आपका जितने भी इंडिया का रिलेशन है विद दी साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में जितने कंट्रीज हैं उनके साथ, तो उनके साथ ये समझने में आपको रिलेशंस को डीपली एनालाइज करने में ये हेल्प करेगा. इन जून 22 इंडिया एंड वियतनाम साइंड अ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट. सो ये MOU होता क्या है ऑन म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट? एक्चुअली होता ये है कि जब भी इस तरह का कोई भी
एग्रीमेंट साइन किया जाता है बाय टू कंट्रीज, तो जो भी उस कंट्री का टेरिटरी होगा, फॉर एग्जांपल इंडिया का एक नेवल पोर्ट है फॉर द मिलिट्री पर्पस, दैट इज कोची, फॉर एग्जांपल कोची। अगर इंडिया और वियतनाम ने म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अपना साइन कर लिया है, सो द वियतनाम का जो नेवल शिप होगा दैट कैन रिसाइड इन कोची, वो कोची आ सकते हैं फॉर द लॉजिस्टिक सपोर्ट, नॉट फॉर द मिलिट्री और समथिंग लाइक दैट। लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए वो आ सकते हैं और उसमें वो रिफ्यूलिंग करा सकते हैं, उसमें कुछ अगर उनकी जहाज़ में या फिर वॉरशिप्स में कुछ ऐसी तकनीकी खराबी हो सकती है वो उसको असिस्ट कर सकते हैं, और भी जो ऐसे लॉजिस्टिक सपोर्ट वाली चीज़ें हैं उनको कैटर कर सकते हैं। तो ये होता है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट से एग्रीमेंट। ओके, the two nations have also signed the joint vision statement on India-Vietnam, the defense partnership of 2030, which would significantly enhance the scope and scale of existing defense cooperation. Vietnam has procured 12 high-speed patrol boats for the Vietnamese border guard force under the 100 million the line of credit extended in the September 2014. सो वियतनाम ने 12 हाई स्पीड पेट्रोल बोट्स इंडिया से प्रोक्योर किए हैं फॉर वियतनाम का बॉर्डर गार्ड फोर्स अंडर द 100 मिलियन LOC, व्हाट दैट इज लाइन ऑफ क्रेडिट। इसमें टर्म आ जाता है आपका LOC। सो व्हाट इज दिस LOC? LOC को मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ इन 2 मिनट्स। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया ने वियतनाम को LOC दिया, LOC ऑफ $100 मिलियन। ओके, so its LOC of $100 million में क्या होगा, that Vietnam will purchase defense equipments from India, and वो पैसे किस रूप में पे करेंगे, पेमेंट किस रूप में होगा, सो इंडिया विल प्रोवाइड $100 मिलियन का लोन, और LOC वो होता है इस तरह का सॉफ्ट लोन होता है, इसमें $100 मिलियन का ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें वियतनाम विल परचेज इतना का एंड विल रिटर्न बैक टू इंडिया इन अ वेरी स्मॉल परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल $100 मिलियन का जब डील साइन हो रहा है, सो इसमें ये जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है ये इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, इसमें जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है बहुत कम रहता है, फॉर एग्जाम्पल से 0.5 to 1% ही रहता है। सो इतने कम इंटरेस्ट रेट पे इंडिया विल प्रोवाइड, और एनी कंट्री वुड प्रोवाइड अ लाइन ऑफ क्रेडिट टू द अदर कंट्री, और उस पैसे से वो फिर जो भी आइटम्स हैं जो जिनके लिए एग्रीमेंट हुआ है वो फिर परचेज कर सकते हैं, और फिर ये $100 मिलियन का जो अमाउंट है वो स्मॉल पोर्शंस में दे रीपे बैक टू द होस्ट कंट्रीज। तो ये होता है LOC का पूरा कंसेप्ट। Vietnam has procured 12 high-speed boats under the line of credit extended by India in September 2014. 2016, India extended another $500 million का LOC to Vietnam. India has also announced the gifting of 2 simulators and monetary grant towards the setting up of language and IT lab at the Air Force Training School for the capacity building of Vietnamese armed forces. तो 2 सिमुलेटर्स एंड मॉनिटरी ग्रांट को भी इंडिया ने प्रपोज किया है, सो ताकि इंडिया जो वियतनाम का आर्म्ड फोर्सेज है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा सके। सो दिस इज़ इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। इतना ही टॉपिक था जितने को हमें डिस्कशन करना था, दैट्स इट फॉर टुडे। जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं और जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, फॉर एग्जांपल ये आपका इंडिया का एक्ट टेस्ट पॉलिसी, I'll make a separate video on this. Operation Blue Star, Operation Black Thunder, India-Canada relation, India-Canada relation. I'll make a separate video on this topic. जो important topic है जो आपको help करेंगे in your understanding of the concept,
मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो ले आऊँगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.